Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, chapter 6, according to T.S. Garewal's book. And the name of this chapter is Accounting Procedures, Rules of Debit and Credit. So, as we all know that if we are doing a small scale business, then we have to record all types of transactions in the very first book. That book is journal. But if we are doing a middle scale or large scale business, then one book is not sufficient. So according to the nature of transaction, we have to maintain different kinds of subsidiary books. So if we are doing large scale business, then we have to maintain, for cash transactions we have to maintain separate book, cash book. For credit purchase we have to maintain purchase book. For credit sale we have to maintain sales book, purchase return book for all kinds of goods which are returned by the businessman to their supplier. And in the same form, sales return book means it contains all types of returns फ्रॉम कस्टमर साइट्स. जो हमने सेल की है, अगर वो वापस करते हैं कस्टमर किसी भी रीज़न से, सो वी हैव टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक. इन द सेम फॉर्म BR बुक, BP बुक, bills receivable book, bills payable book and journal proper means the transaction which is not recorded in any type of subsidiary book we have to record in journal proper. So if we are doing large scale business, then number of transactions are large. We have to do n number of transaction in a day, so we have to maintain these types of separate subsidiary books according to the nature of that particular transaction. So when we have to record all types of transaction in the very first book, means in journal or in subsidiary books, then we have to it's necessary to have, you can say, some kind of evidence. Clear? On that particular type of evidence we have to record each and every transaction. If you have no evidence regarding a particular transaction, then you can't record even 1 rupees ट्रांजैक्शन इन एनी टाइप ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स. क्लियर? अगर आपके पास किसी भी ट्रांजैक्शन का एविडेंस नहीं है, देन यू कांट रिकॉर्ड दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन. चाहे वो 1 रुपये का ट्रांजैक्शन है, चाहे वो 1 लाख रुपये का ट्रांजैक्शन है, यू मस्ट हैव एनी काइंड ऑफ एविडेंस. सो दीज एविडेंसेस आर नोन एज सोर्स डॉक्यूमेंट्स. जिन एविडेंस के बेस पर आप अकाउंट्स की बुक्स में ट्रांजैक्शंस को राइट करते हो, दैट एविडेंस इज़ नॉन एज सोर्स डॉक्यूमेंट. सपोज यू परचेज एनी काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन फ्रॉम अ पर्टिकुलर शॉपकीपर, देन यू हैव टू पे इन कैश, सो यू can receive cash memo. In the same form, some kind of credit transactions are there, then you can purchase, means if you are purchasing on credit basis, then you can receive invoice or bill type of evidence. In the same form, some other kind of source documents are there, that are debit note, you can say, and credit notes. So on the basis of these we will discuss all kinds of source document in the very next chapter. So on the basis of these evidences we have to record each and every transaction in the books of, in the very first book of accounting, we can say in journal. इन एविडेंस के बेस पर आपको जर्नल में, जो कि सबसे पहली बुक है, एंट्रीज करनी होती हैं. क्लियर? सो यू हैव टू रिकॉर्ड, you have to file all kinds of evidences properly according to the date, because we have to record in the journal book in chronological order, means date wise we have to record each and every transaction. So you have to keep each and every source document in your own file, and you have to maintain it according to the date. So to record each and every transaction in the very first book, means in journal, we have to follow some kinds of rules and regulations regarding, you can say, the rules of debit and credit. So in journal we have to record each and every transaction according to the date only. Suppose some kinds of goods are purchased on 1st of Jan from Ram, and some other
means the same type of goods or other kind of goods are also purchased from Shyam, then we have to record in that simple book, means in journal only. So all kinds of transaction, whether it is related with cash or credit, purchase or sale, purchase of asset or purchase of goods, sale of assets, sale of goods, so each and every transaction according to the date we have to mention, we have to record in the journal book only. सो इसमें क्या होगा, सारी जो एंट्रीज़ हैं वो आपके पास डेट वाइज होगी. बट इफ़ वी वांट टू नो that a particular amount which is paid to a particular person after a specific time period, then it's very difficult to calculate it through journal. Suppose करो हमने परचेजेस जो हैं वो राम से भी किए हैं, श्याम से भी किए हैं, मोहन से भी किए हैं. 10 सप्लायर्स आर देयर. ठीक है, हम गुड्स को 10 और 20 और 30 सप्लायर से परचेज कर रहे हैं. एंड इफ़ वी वांट टू नो दैट द अमाउंट विच वी हैव टू पे टू अ पर्टिकुलर सप्लायर, मीन्स सपोज राम को हमने कैलकुलेट करना है कि राम से हमने कितना अमाउंट उसको पे करना है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, देन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मीन्स to calculate the amount which we have to pay to Ram, because we have recorded each and every transaction according to the date only. ठीक है, हमने डेट वाइज रिकॉर्ड किए होंगे. हो सकता है 1 Jan से हमने 1 Jan को हमने परचेज़ किया हो राम से, 2 Jan को कुछ रिटर्न कर दिया हो गुड्स परचेज़ की हुई. ठीक है, हो सकता है हमने उसके बाद 10 Jan को फिर परचेजिंग की हो, 15 को की हो, 20 को की हो. मीन्स हमारे पास जो रिकॉर्ड होगा जर्नल में वो डेट वाइज होगा. बट एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अगर हमने राम को पेड अमाउंट फाइंड आउट करना है तो हमें बहुत मुश्किल आएगी, क्योंकि हमें हर डेट वाइज राम के सारे ट्रांजैक्शंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद हमें उन अमाउंट्स को ऐड करना होगा. अगर कुछ रिटर्न्स है देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट. सो यू कैन से इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क. So for this purpose we have to maintain another book just after journal, that is ledger book. ठीक है, इस ledger book में क्या होगा, each and every transaction has their own page. So similar type of transactions you can say are written on a particular page which is related to a particular person or company or firm at one place, means on a particular page only. क्लियर. सो जर्नल बुक में जो सिमिलर टाइप के ट्रांजैक्शन है, सपोज राम से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है, सो राम से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं, सिमिलर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू अ पर्सन और कंपनी और फर्म, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली ऑन अ पेज. एक वन पर्टिकुलर पेज इज़ देयर एंड दैट पेज यू कैन से इज़ कंसीडर्ड दैट पर्टिकुलर पर्सन और कंपनी और फर्म्स पेज. ठीक है, अगर आपको राम का जो है अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर पेज आपको दे देंगे लेज़र में, एक सीरियल नंबर का पेज राम के लिए होगा, एंड यू हैव टू मेंटेन वन सेपरेट अकाउंट फॉर राम, एंड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन विच इज़ रिलेटेड टू दैट पर्सन मीन्स राम, यू हैव टू रिकॉर्ड इन ऑन दैट पर्टिकुलर पेज. ठीक है, जो भी ट्रांजैक्शन आपने एक पर्टिकुलर ईयर में किए हैं, एक साल में किए हैं, चाहे वो किसी भी पर्सन से रिलेटेड हैं, कंपनी से रिलेटेड हैं, फॉर्म से रिलेटेड हैं, हर एक को एक पेज प्रोवाइड किया जाएगा. और उस साल में जितने भी ट्रांजैक्शन हमने जर्नल में उस पर्सन से रिलेटेड, कंपनी और फर्म से रिलेटेड किए होंगे, उसको हम उस पेज पे राइट करेंगे. एंड दिस इज़ ओनली पॉसिबल टू मेंटेन अ रिकॉर्ड, मीन्स टू मेंटेन a particular account on that page. We can say that after a specific time period, each and every transaction is shifted from journal to ledger, and one page is allotted to a particular person or company or firm or each and every head. And the similar type of transaction, means the transaction which are related to that person only, you have to keep, you have to write on that particular page. Suppose हम राम का अकाउंट बना रहे हैं, then you have to maintain one particular account which represent only Ram's transaction. अब इसमें हम सिर्फ राम के ट्रांजेक्शन्स को ही शो करेंगे. So each and every account in formal language you can say that account is a record of transaction अंडर अ पर्टिकुलर हेड. ठीक है, इसका एक पर्टिकुलर हेड होगा और अकाउंट जो है उस पर्टिकुलर हेड के अंडर सारे ट्रांजैक्शंस को शो करेगा. सो इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शन बट यू कैन से ऑल्सो द इफेक्ट एंड डायरेक्शंस. ये आपके अमाउंट को भी शो करेगा
और उस पर्टिकुलर अकाउंट पे क्या इफ़ेक्ट हो रहा है उन ट्रांजेक्शन का, दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन दैट पर्टिकुलर अकाउंट. सो ईच एंड एवरी account has 4 particular heads. You can say one for date, I'm showing one column for date of the transaction. Another one is for particular, you have to describe your transaction in short form here. And then next column is for jf means because we are maintaining this type of account in ledger book na, so we have to write in this column the page number of journal book from where we have picked that particular transaction. जहाँ से हमने उस ट्रांजेक्शन को पिक किया है जर्नल बुक में से, उस जर्नल बुक का पेज नंबर, each and every page has one serial number in journal book, so we have to write down that same page number for cross checking on this column. Clear? Then next column is for amount. These are related with debit side. Two sides are there. One side is left side and left side is known as debit side, and in the same form same columns are there, one for date, another for particular, next for LF ledger folio, another one is for amount, and the same columns are related with credit side. Clear? So on the left hand side of each and every account we have to write down dr means debit, in abbreviated form we can say debit. And on the right hand side of each and every account means at the end, means on in front of amount only, you have to write down cr for credit. Clear? So 4 columns are there regarding each and every side. Date of the transaction. Particular means in short form, in brief, you have to describe your transaction. Your means in brief form you have to describe that particular transaction which is related to that date only. So in ledger folio, next column ledger folio, you have to write down the page of journal folio. Sorry, journal folio is there. So in journal folio you have to write down the page number of journal from where you have picked that particular transaction. Then amount of that transaction, same columns are related with credit side, date, particular, jf and amount. Clear? Now come to the another point which we have done in first chapter. I am reminding you only. So 2 types of systems are there regarding accounting. One is double entry system, another one is single entry system. हम अकाउंटिंग में 2 सिस्टम्स के थ्रू ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं. सो ये हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिमाइंड करवाऊंगी आपको. सो डबल एंट्री सिस्टम मीन्स वी हैव टू राइट डाउन बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ आर ट्रांजैक्शंस. Each and every transaction, as you all know, each and every transaction has 2 aspects. So in double entry system, which is developed in 1494 by Luca Pacioli, and in this system we have to record each and every aspect of that particular transaction. Suppose one transaction is there, furniture purchased at the rate of rupees 5,000 on cash. So 2 aspects of this transaction. This is a financial transaction and we have to convert it into money, means 5,000 amount is there. So in this transaction 2 aspects are there. First one is furniture. ठीक है, 2 मेन चीज़ें क्या हैं इसमें. फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर इज़ in comes in form regarding that particular business and cash is in goes out form. कैश जा रही है बिजनेस से, फर्नीचर आ रहा है. So this transaction involve 2 main aspects. First one is furniture and another one is cash. So we have to record both the aspects of that transaction. Means we have to record furniture, for maintaining furniture account we have to record that purchase, and for maintaining by maintaining cash account we have to maintain our cash balance. ठीक है, हम कैश अकाउंट बनाएंगे, वहाँ से 5,000 रुपीज़ माइनस करेंगे. इन द सेम फॉर्म वी हैव टू प्रिपेयर फर्नीचर अकाउंट, एंड इन फर्नीचर अकाउंट वी हैव टू ऐड रुपीज़ 5,000 फर्नीचर. सो बोथ द एस्पेक्ट्स आर एंटर्ड इन double entry system. All the books are maintained
by some rules and regulations, means you have to follow some rules and regulations, and through these rules and regulations you have to maintain all books, all necessary books, means whether it is related to a person or asset or any type of expense or income, you have to record each and every transactions which is a financial kind of transaction, and you have to maintain each and every book in this system. This one is double entry system. So this book is, you can say, this type of system is a valid system by the government or by the means law. According to law, if a business is registered, like company business is there, or you can say cooperative societies are there, if a partnership firm has a registered firm, then all kinds of registered business, for all kinds of registered business you can say it's compulsory to adopt double entry system. ठीक है, ये लीगल सिस्टम है, गवर्नमेंट इसी को ही फॉलो करती है. अगर आपके बिजनेस रजिस्टर्ड फॉर्म में है देन यू हैव टू फॉलो दिस सिस्टम रिगार्डिंग टू मेंटेन योर अकाउंट्स बुक्स. And next one is single entry system. Single entry system, in single entry system we have to record only one aspect. ठीक है, ये सिस्टम जो है हम अपने अकॉर्डिंग सेटअप करते हैं. कोई भी एक एस्पेक्ट को हम राइट कर लेंगे तो उसमें हम सेम ट्रांजैक्शन अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ले, फर्नीचर परचेज फॉर ₹5,000 ऑन कैश, सो इन दिस वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश, वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली कैश एस्पेक्ट. क्लियर? No asset account is maintained in this system. Only means you have to maintain books according to your own requirement. ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग कोई बुक को स्किप कर सकते हो, कोई भी बुक को जो है मेंटेन कर सकते हो. जो ये छोटे शॉपकीपर और स्मॉल स्केल के बिजनेसमैन होते हैं वो एक रफ़ बुक अपने पास जो है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, रफली रिकॉर्ड करने के लिए रखते हैं, तो वो सिंगल एंट्री सिस्टम का ही एक एग्जांपल है. सो in single entry system, because all the aspects are, means both the aspects are not recorded, so this is not a legal or valid form regarding a registered business. अगर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू अ पर्टिकुलर लॉ, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 के अंडर आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड है. इन द सेम फॉर्म कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग अगर आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है, देन यू हैव टू फॉलो ओनली डबल एंट्री सिस्टम. इफ़ यू आर मेंटेनिंग सिंगल एंट्री सिस्टम दैट देन इट्स नॉट मीन्स लीगली प्रूव्ड. ठीक है, अगर टैक्स अथॉरिटीज़ को टैक्स सेटअप करना है तो वो अपने अकॉर्डिंग ही टैक्स सेटअप करेंगे. आपकी ये बुक जो है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बुक आपने मेंटेन की हैं उसके प्रॉफिट और लॉस को कोई भी कंसीडर नहीं करेगा. सो इफ़ वी आर अडॉप्टिंग दिस सिस्टम, मीन्स ऑल आवर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट इज़ टोटली बेस्ड ऑन दिस सिस्टम. क्लियर? एट द एंड ऑफ द सिलेबस वी learn something about you can say single entry system. Only one chapter is there in which you can learn regarding this system. Okay, if we are means adopting double entry system, so according to double entry system we have to maintain journal book. So when we have to record a transaction in very first book, journal book, we have to follow some kind of rules and regulations. So these rules and regulations we have to discuss in this topic. So the topic is types of accounts. ठीक है, आपने अभी अकाउंट्स के बारे में किया है, मीन्स अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर वी हैव टू राइट डाउन सिमिलर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू अ पर्सन और फर्म और कंपनी. Clear? So how many types of accounts are there? So for this you can say two approaches are there according to double entry system. Types of account, under types of account two approaches are there. First one is traditional approach जो काफ़ी टाइम पीरियड से जो है फॉलो हो रही है, एंड सेकेंड सिस्टम एंड सेकेंड अप्रोच इज़ मॉडर्न अप्रोच. क्लियर? सो you can say each and every record has their own rules and regulation. So first of all we have to do traditional approach. So according to traditional approach two types of accounts are there. First one is personal account and second one is impersonal account. So personal account means the account which are directly related with the human being. ठीक है,
ऐसे अकाउंट्स जो एक पर्सन से रिलेटेड हैं, एक ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड हैं, these accounts are known as personal accounts. So we can divide it into three categories. First one is natural personal account, means the accounts which are directly related with the natural human beings, a human being which is created by God. ठीक है, ऐसी ह्यूमन बींग जिनको गॉड ने बनाया है, बाय नेचर वो ह्यूमन बींग्स हैं, only that type of human beings accounts are involved in this category, like Ram's account, Sham's account, Mohan's account, Sohan's account. Clear? And in the same form you can say debtors account. Debtors means आपने जिन कस्टमर को क्रेडिट पे सेल किया, so you are liable to collect a lump sum, you have right to collect a lump sum amount from that person. So because that ग्रुप इज़ रिलेटेड विद दैट ह्यूमन बींग्स ओनली. ठीक है, आपने जिनसे पैसा लेना है, जिनको आपने क्रेडिट पे सेल की है, उसके पूरे ग्रुप को हम लोग डेटर्स बोलते हैं, उस ग्रुप को जिनसे आपने अमाउंट कलेक्ट करना है. सो बिकॉज दीज आर रिलेटेड विद ह्यूमन बींग्स, सो डेटर्स अकाउंट्स आर इन्वॉल्व इन natural personal account. In the same form, a group of person to whom you are liable as a business, you are liable to pay a lump sum amount, that type of accounts are also included in natural personal accounts. Means ऐसे पर्सनस जिनसे आपने रॉ मटेरियल या कोई भी चीज़ क्रेडिट पे परचेज़ की है, एज अ बिजनेस यू आर लाइबल टू पे दीज टाइप्स ऑफ पर्सन. सो दैट ग्रुप इज़ नॉन एज क्रेडिटर. ठीक है, जिनको भी आपने पेमेंट देनी है उन सभी पर्सनस का ग्रुप बना लेते हैं और उनको एक क्रेडिटर्स के हेड में डाल देते हैं, क्योंकि अब ये क्रेडिटर्स उस ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑल दीज पर्सनस आर नेचुरल ह्यूमन बींग्स. सो वी हैव टू include creditors account in natural personal account. In the same form, capital account. Capital account means, capital means the amount which is invested by the owner of the business in their own business. एक businessman ने अपने business में जो पैसा invest किया, that is known as capital. Because a person is there, a businessman is there, and that businessman is a human being. So his or her capital account is also included in natural personal account. Next one is drawing account. Drawing means the amount which is withdrawn by the owner from their business for their personal use. ऐसा अमाउंट या ऐसे टाइप के प्रोडक्ट्स जो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में से विड्रॉ कर लिए, निकाल लिए अपने पर्सनल यूज़ के लिए, that amount or that products are known as his or her drawings. Clear? So to record that particular withdrawn amount or product, we have to maintain one separate account, and that account is known as drawing account. So businessman is also a human being, and he is withdrawing a lump sum amount of product or cash from their business for their personal use. So we have to record drawing account in natural personal account. So first category of personal account is natural person. ऐसे person जिनको गॉड ने बनाया है, उन सब के अकाउंट, जो एक ह्यूमन बीइंग है नेचुरली, उन सब के अकाउंट को आप यहाँ राइट करोगे. इस रूल के अकॉर्डिंग आपने उसको जो है इस रूल को आपने फॉलो करना है उन अकाउंट्स पे. Next one is artificial personal account. Artificial personal account means the persons which are not created by God as a human being, but having some kind of, you can say, rights like a human being. ठीक है, ऐसे persons जो God ने create नहीं किए, human beings नहीं हैं, जो artificial human beings हैं, means उनके पास कुछ ऐसे rights हैं जो rights सिर्फ human beings के पास होते हैं. So you can say a company can purchase their own assets by their own name. एक कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाती है तो अपने नेम से एसेट्स को, प्रॉपर्टीज़ को खरीद सकती है, अपने नाम से बेच सकती है. एनी थर्ड पार्टी कैन डील विद द company can suit a case against third party, and the same third party can also suit a case against a particular company or firm or club or cooperative societies. So these are, you can say, artificial persons. ऐसे persons जो human beings नहीं हैं लेकिन उनके पास कुछ ऐसी powers हैं जो human beings के पास होती हैं. So these are also included in personal accounts. So we have to apply personal accounts rule
on company, firm, club, cooperative societies also. Bank also. Bank is also as means it also work as an artificial person. So the next category is representative personal account. Representative personal account means you can say the accounts which represent a certain person or a group of persons. ठीक है, ऐसे अकाउंट्स जो एक पर्सन को या एक ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर. सपोज सैलरी, जब भी कोई इंस्टीट्यूशन सैलरी पे करता है तो उसके पास एन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं. सो इट्स नॉट पॉसिबल टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पर्सन's नेम. सो वन हेड इज़ देयर, दैट इज़ सैलरी, and we have to write down the amount which we have paid as salary. क्लियर. क्या करते हैं वो कि सपोज एक स्कूल है, उसके अंडर 100 टीचर्स हैं. सो जब भी सैलरी पे होती है तो उन 100 टीचर्स के नेम राइट नहीं करके एक पर्टिकुलर हेड बना देते हैं, सैलरी हेड, एंड वी हैव टू राइट डाउन द अमाउंट विच इज़ पेड एज अ सैलरी टू दैट टीचर, दैट टीचर्स यू कैन से. So that group represent means that salary head represent a group of teachers to whom salary is paid. So in the same form some kind of representative personal accounts are there, like outstanding expense means the expenses which are due but not yet paid. ऐसे खर्चे जो ड्यू हो चुके हैं लेकिन अभी पे नहीं किए हैं बिजनेस ने, इंस्टीट्यूशन ने. So these are outstanding expenses, and these expenses represent a particular head of means group of persons. ठीक है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पोज करो स्कूल के जो हैं एम्प्लॉयज़ की सैलरी, जो टीचर्स हैं उनकी सैलरी ड्यू हो गई है. ठीक है. अप्रैल मंथ कंप्लीट हो गया है एंड दे ऑल हैव वर्कड, सब ने काम कर दिया. अप्रैल मंथ का मंथ कंप्लीट हो गया है. और सपोज अगर बिजनेस मीन स्कूल ने सैलरी पे नहीं किया, सो फॉर दिस टाइप ऑफ एक्सपेंस फॉर स्कूल इट इज़ नोन एज द अमाउंट विच इज़ ड्यू बट नॉट येट पेड, मीन्स आउटस्टैंडिंग टाइप ऑफ सैलरी. ठीक है. तो वो आउटस्टैंडिंग सैलरी उस पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगी जिनको भी वो सैलरी पे होनी है. तो वो 50 टीचर्स भी हो सकते हैं, 100 टीचर्स भी हो सकते हैं. सो यू कैन से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. ऐसे अकाउंट्स, ऐसे पर्सनस के अकाउंट जो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मीन्स एक हेड जो है उस ग्रुप ऑफ पर्सनस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इन द सेम फॉर्म प्रीपेड टाइप ऑफ एक्सपेंस. प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस टाइप ऑफ एक्सपेंसेस. ठीक है. ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू ही नहीं हुए लेकिन एडवांस में पे हो गए हैं. सो दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पर्सन. सो वी हैव टू इंक्लूड हेयर. इन द सेम फॉर्म accrued income is the another example of this head. Accrued income means the income which you have earned but not yet received. ऐसी income जो आपने earn कर ली है लेकिन अभी आपको मिली नहीं है. This also represent a group of persons. In the same form unearned type of income. Unearned means which you haven't earned but you have received in advance. Clear. अभी आपने कमाई नहीं है, आपने काम नहीं किया लेकिन आपको एडवांस में रिसीव हो गई है. सो दीज इनकम्स मीन्स एक्यूर्ड इनकम एंड अनअर्न टाइप ऑफ इनकम, एंड दीज एक्सपेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑल आर included in this particular head, that is representative personal account. So 3 types of personal accounts are there. First one is natural personal, next one is artificial personal, and next one is representative personal account. So all types of personal accounts we have to apply one rule. That rule is debit the receiver and credit the giver. Means जो भी रिसीव कर रहा है उस पर्सन को, अब वो पर्सन नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी हो सकता है. तो जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है उसको आपने डेबिट करना है. मीन्स यू हैव टू राइट डाउन इन द लेफ्ट साइड ऑफ द अकाउंट. एंड इफ़ दैट पर्सन इज़ द गिवर, अगर वो दे रहा है बिज़नेस को, आपने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. ठीक है. बिज़नेस को अगर कोई पर्सन दे रहा है मीन्स दैट गिवर्स अकाउंट यू हैव टू क्रेडिट. इफ़ दैट पर्सन इज़ अ रिसीवर देन यू हैव टू डेबिट. क्लियर. अब ये एग्जांपल्स इसको और क्लियर करेंगे.
Next one is impersonal account. Impersonal account means that type of accounts which are not related with a particular human being. ठीक है, ऐसे अकाउंट जो किसी पर्सन से रिलेटेड नहीं है. These types of accounts are you can say impersonal type of accounts. So we can divide it into two categories. First one is real account, second one is nominal account. In real account we have to include all types of assets of a business. Assets means all types of, you can say, property. ठीक है, so in first chapter we have done that two types of assets are there. First one is fixed asset and second one is current assets. So in fixed assets we have tangible type of assets और intangible type of assets. Means ऐसी assets जो जिनका physical appearance होता है. The type of assets which we can touch, we can see, that type of assets are known as tangible type of assets. Means having some kind of physical appearance. फर्नीचर है, आप उसको देख सकते हो, बिल्डिंग है, प्लांट है, लैंड है, स्टॉक है. ठीक है, स्टॉक करंट एसेट हो जाएगी आपकी. ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जो आपको लॉन्ग टाइम पीरियड तक बिजनेस में ही रखनी है. आपने फर्नीचर का बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और आपने काउंटर बनाया, शटर बनवाया शॉप का. ठीक है, आपने चेयर सेटअप की, कस्टमर को बैठाने के लिए एक सोफ़ा सेट रखा. सो दीज टाइप्स ऑफ एसेट्स आर फॉर लॉन्ग लास्टिंग टाइम पीरियड. मीन्स स्कूल के लिए अगर हम स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्कूल सेटअप किया, स्कूल में डेस्क अरेंज करवाए हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी ने. इन द सेम फॉर्म वहाँ फैंस लगे हुए हैं, स्मार्ट बोर्ड लगा हुआ है. ये सब चीज़ें हम जब परचेज़ करते हैं तो लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए यूज़ करने के लिए परचेज़ करते हैं. तो इन एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं. और ये टू टाइप्स की होती हैं. फर्स्ट वन टेंजिबल, जिनको हम देख सकते हैं. सेकेंड वन इज़ इनटेंजिबल, जो दिखाई नहीं देती लेकिन इनकी सेलिंग अमाउंट होती है. क्लियर. एंड सेकेंड टाइप ऑफ एसेट्स करंट एसेट्स होती हैं. मीन्स विच आर फॉर रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, विच बिजनेस की फॉर रीसेल पॉइंट ऑफ व्यू, जिनका जो मोटिव है लॉन्ग टाइम पीरियड तक अपने पास रखना नहीं होता, बल्कि उसको जो है रीसेल करने के लिए हम अपने पास रखते हैं. लाइक स्टॉक का हमारा मोटिव रहता है कि सेल हो जाए जल्दी से. क्लियर. सो ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, वेदर इट इज़ अ फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट, टेंजिबल और इनटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट, यू हैव टू रिकॉर्ड इन रियल अकाउंट. So you have to apply the rule of real account on all types of assets, whether it is a fixed asset or current asset, tangible asset or intangible asset. Intangible के लिए मैं थोड़ा सा और क्लियर करूँगी. So intangible type of assets, you can say that type of assets which you can't see. ठीक है, जो आप देख नहीं सकते ऐसी एसेट्स को, लेकिन जिनको आप जो है जिनकी सेलिंग अमाउंट होती है, आप देख नहीं पाओगे लेकिन सेलिंग अमाउंट है उनका. सो दीज टाइप्स ऑफ एसेट्स आर इनटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट्स. लाइक गुडविल. गुडविल मीन्स द वैल्यू ऑफ रेपुटेशन. ठीक है, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन मीन्स डबवली में कन्हैया कुल्फ़ी वाले की शॉप है. ठीक है, एक पर्टिकुलर प्लेस पे है, फेमस हो चुकी है वो जगह. जब भी उसको सेल करेंगे तो उसमें जितनी भी एसेट्स हैं आपको उसकी अमाउंट तो पे करनी ही होगी. शॉप की जितनी ऑर्डिनरी अमाउंट है, सेलिंग अमाउंट है, वो भी पे करनी होगी. but you have to pay a lump sum amount as the hard work of that owner. Means you can say the reputation which is earned by the owner of the business, you have to pay for it. ठीक है, जो रेपुटेशन उसने कमाई है अपने हार्ड वर्क से, इतने सालों की मेहनत से, उस रेपुटेशन की भी आपको एक वैल्यू पे करनी पड़ेगी. एंड दैट अमाउंट इज़ नोन एज गुडविल्स अमाउंट. ठीक है, आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देना होगा, क्योंकि देखो आप अगर उस शॉप को परचेज़ करते हो और सेम टाइप का बिज़नेस स्टार्ट करते हो करना, तो आपको कुछ ज़्यादा हार्ड वर्क रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि वो जगह उस एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल करने के लिए फेमस हो चुकी है ऑलरेडी. क्लियर. सो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसको हम गुडविल बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज़ ट्रेडमार्क. यू कैन से ट्रेडमार्क मीन्स इफ़ यू रजिस्टर्ड योर ब्रांड्स नेम अंडर ट्रेडमार्क एक्ट 1999, देन इट बिकम योर प्रॉपर्टी. ठीक है, जो भी ट्रेडमार्क होता है आप बोल सकते हो कि एक ब्रांड का नेम है जो आपने रजिस्टर्ड करवा लिया अपने प्रोडक्ट का. आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करने के लिए उसका एक नेम राइट करते हो. जैसे ह्यूमन बींग्स के नेम होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स के भी नेम होते हैं. लाइक लक्स सोप है. ठीक है, एन नंबर ऑफ सोप्स हैं, लक्स है, हमाम है.
ठीक है, संथॉल हैं, सभी ने अपने अपने प्रोडक्ट के नेम राइट किए हुए हैं और कोई उसको कॉपी नहीं करे. फॉर दिस पर्पज़ वी हैव टू रजिस्टर्ड our name, means our product's name according to the Trademark Act 1999. So if you registered your name of product, then it becomes your property. So if you sold that name, then you can receive a lump sum amount from purchaser. अगर आप उस ट्रेडमार्क को, अपने ब्रांड को, वुडलैंड वाले अपने ब्रांड को सेल करेंगे, अपना नाम को यूज़ करने का परमिशन देंगे अगर, तो उसके बदले में दे आर मीन्स दे कैन रिसीव अ लम्प सम अमाउंट फ्रॉम परचेज़र. परचेज़र से कुछ अमाउंट रिसीव कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज़ पेटेंट, मीन्स अ न्यू इन्वेंशन और डिस्कवरी फ्रॉम अ बिजनेस. So if you registered that type of invention, then it become your property. अगर आपने कोई नई चीज़ इन्वेंट की है, डिस्कवर की है और अपने नेम से आपने उसे रजिस्टर्ड करवा लिया, अपने बिज़नेस के नेम से आपने रजिस्टर्ड करवा लिया है, तो बिज़नेस की वो प्रॉपर्टी बन जाता है. इन द सेम फॉर्म कॉपीराइट. कॉपीराइट का एग्जांपल आपकी बुक हो सकता है. ठीक है, बुक के जो राइटर हैं उसने अपनी एक ओरिजिनल कॉपी, एक बुक राइट की है और अगर वो ये चाहता है कि इसको कॉपी नहीं करे कोई, तो वो उसको रजिस्टर्ड करवा सकता है अपने नेम से. अगर उसने इसको कॉपी करने का राइट किसी को प्रोवाइड करना है, देन दैट राइटर कैन अर्न अ लम्प सम अमाउंट फ्रॉम दैट पर्सन. सो दीज आर इंटेंजिबल टाइप ऑफ एसेट्स. बट रिमेंबर वन थिंग, इन रियल अकाउंट वी हैव टू एक्सक्लूड बैंक अकाउंट एंड डेटर्स अकाउंट, बिकॉज बोथ आर इंक्लूडेड इन नेचुरल accounts, personal accounts. Clear? This is artificial person and this one is a natural person. So we have to exclude two types of assets. First one is bank and second one is debtor. Rest of the assets we have to apply real accounts rule, and the rule of real account is debit what comes in and credit what goes out. Means जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं उसको डेबिट करो, and the things and the assets which are is in goes out form you have to credit it. Clear? जो भी एसेट बिजनेस में आ रही हैं उनको डेबिट करोगे, जो भी जा रही हैं उनको क्रेडिट करोगे. ओके, देन सेकेंड कैटेगरी ऑफ इम्पर्सनल अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. Nominal account means that type of account in which we have to record revenue expenditure and revenue incomes. What do you mean by revenue expenses and revenue incomes? So जो daily expenses होंगे, in simple language we can say that the routine expenses, clear, like rent paid, electricity bill paid, telephone expenses, telephone bill paid, clear. In the same form you can say interest paid. ठीक है, जो रूटीन के एक्सपेंसेस हैं और जो रूटीन की इनकम है, लाइक रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड. So all types of expenses and all types of incomes we have to apply nominal accounts rule. ठीक है, all types of expenses and incomes are included in nominal accounts, and we have to apply one rule, that is debit the expenses and losses, credit the incomes and gains. Means सारे खर्चों को, losses को आप डेबिट करोगे, सारी इनकम को, सारे गेन को आपने क्रेडिट करना है. क्लियर? तो जो भी खर्चे बिजनेस में हो रहे हैं उन सभी को आपने डेबिट करना है. ठीक है, और जो भी इनकम्स हो रही हैं उन सभी को आपने क्रेडिट करना है. अब देखो, सेल अगर आप करोगे, प्रोडक्ट्स की सेल करोगे तो वो आपकी इनकम है. ठीक है, तो आपने सेल पे भी कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये सेम, मीन्स क्रेडिट हो जाएंगी सेल, क्योंकि वो आपकी इनकम है. इन द सेम फॉर्म अगर आप परचेज़ करते हो, परचेज़ किसकी होती है? परचेज़ और सेल दो वर्ड जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए लगते हैं. गुड्स मीन्स द प्रोडक्ट्स इन विच अ बिजनेसमैन इज़ डीलिंग, जिसमें आप बिज़नेस कर रहे हो. आपका फर्नीचर का बिज़नेस है तो फर्नीचर के लिए आप जो भी परचेजेस करोगे, वुडन स्लाइड्स परचेज़ किया आपने, फेविकोल परचेज़ किया, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आप फर्नीचर की और फिर सेल करते हो, वो बिज़नेस है आपका. तो फर्नीचर बनाने के लिए आपने जो भी चीज़ें परचेज़ की हैं वो आपके लिए गुड्स होंगी, एंड उसके जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको यहाँ राइट करने होंगे, परचेजेस में होंगे. आपके वुडन स्लाइड आप परचेज़ करते हो, फेविकोल परचेज़ किया आपने, पिन्स परचेज़ किया, स्पॉन्ज परचेज़ किया, क्लॉथ परचेज़ किया. मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी खर्चे कर रहे हो आप, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के रिगार्डिंग या फिनिश्ड गुड्स को जो है सेटअप करने के रिगार्डिंग. सो ऑल टाइप्स ऑफ purchases you have to include in this account. In the same form, all types of income
यू हैव टू रिकॉर्ड इन नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, जो भी आप प्रोडक्ट की सेल करके अर्न कर रहे हो वो सारे आपके यहाँ पे ही इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट यू कैन से बैड डेट्स रिटर्न ऑफ and bad debts recovered both are also included in nominal account। होते क्या हैं ये? So debtors means a group of person from a business is liable to receive a lump sum amount, to recover a lump sum amount, जिनको आपने क्रेडिट पे सेल की हैं और बिजनेस उनसे कुछ अमाउंट लेने के लिए बिज़नेस के पास कुछ राइट है उससे अमाउंट रिकवर करने का, वो डेटर्स की कंडीशन में आते हैं। मीन्स आपके कस्टमर जिनको आपने क्रेडिट सेल की है और उनसे पैसा अभी कवर नहीं हुआ, दैट आर द डेटर्स ऑफ अ बिजनेस। सो 3 कैटेगरीज आर देयर रिगार्डिंग डेटर्स। फर्स्ट वन इज़ गुड, सेकेंड वन इज़ डाउटफुल एंड थर्ड वन इज़ बैड। ऐसे डेटर्स जिनसे सारा पैसा कवर हो जाएगा गुड डेटर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। डाउटफुल मीन्स जिन पे हमें डाउट है, हो सकता है कि पूरा अमाउंट रिकवर हो जाए, हो सकता है ना भी हो। सो बैड मीन्स ऐसे डेटर्स जो आपका अमाउंट पे नहीं किया जिन्होंने, मीन्स द डेटर्स टू whom बिजनेस इज़ नॉट कवर्ड एनी टाइप ऑफ अमाउंट रिगार्डिंग देयर क्रेडिट से। क्लियर? सो बैड डेटर्स को लॉस है वो बिज़नेस के लिए। बैड डेटर्स कब होंगे? सपोज एक पर्सन आपने उनको एज अ बिज़नेस आपने उनको सेल किया क्रेडिट पे और वो जो है इंसॉल्वेंट हो गया या भाग गया या फिर किसी भी रीज़न से उससे वो पैसा जो है वो आपकी क्रेडिट सेल का जो अमाउंट है वो रिकवर नहीं हो पाया। सो दैट टाइप ऑफ डेटर्स आर इंक्लूडेड इन बैड डेट्स। ठीक है, सो बैड डेट्स को एज अ लॉस वी हैव टू राइट डाउन इन आवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स डेबिट साइड। वी हैव टू राइट ऑफ देयर दैट बैड डेट्स। So this is a kind of loss you can say. So according to the nominal rule we have to record these types of bad debts in the debit side of a particular account। ठीक है, जर्नल एंट्री में हम उनको डेबिट साइड पे लिखेंगे। इन द सेम फॉर्म सपोज जिनसे आपने कवर करने थे आप राइट ऑफ कर चुके हो, उनसे कुछ पैसा मिल गया है, मान लो वो पर्सन आ गया 5000 देने थे, आपको 2000 दे गया, वो बोला कि इसके बाद मेरे पास नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ amount which a business is recovered is known as bad debts recovered। ठीक है, जो आप राइट ऑफ कर चुके थे अचानक से वो पैसा आपको मिल गया, सो दैट इज़ ट्रीटेड एज अ गेन और इनकम फॉर बिजनेस। सो यू हैव टू क्रेडिट this kind of bad debts recovered। Okay, according to traditional approach 3 main accounts are there। You can say personal, you have to apply debit the receiver and credit the giver on this type of account, and real account is also there। You have to apply debit what comes in and credit what goes out on this type of account। And next is nominal account। On nominal account you have to apply the rule debit the expenses and losses and credit the incomes and taking। So now we have to apply all 3 rules of personal account, real account and nominal account on different kinds of financial transaction। जो आपने रूल अभी रीड किए हैं पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के और नॉमिनल अकाउंट के, उनको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पे कैसे अप्लाई करते हैं टू डू अ जर्नल एंट्री। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। Suppose one transaction is there, one financial transaction is there, rupees 5000 received from Shyam। So this is a financial transaction because a lump sum amount is there and this is in a particular country's currency, 5000 rupees में है। ठीक है, financial transaction है ये, and we have to record this financial transaction in the very first book, means in journal book। Clear? हमने ये transaction अकाउंट्स में एंटर करना है बाय अप्लाइंग डेबिट एंड क्रेडिट रूल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक 2 मेन एस्पेक्ट्स ऑफ दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज वी आर डूइंग डबल एंट्री सिस्टम। सो according to double entry system we have to find out, we have to record both the aspects of our transaction। So we have to find out both the aspects first। So in this transaction rupees 5000 received by a business from Shyam। ठीक है, आपको अकाउंट्स
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मेंटेन करने हैं। तो बिजनेस में जो चीज़ आ रही है या जा रही है, यू हैव टू रिकॉर्ड ओनली दैट वन। क्लियर? So in this transaction, business is receiving rupees 5,000 from Shyam. So two main aspects are there. First one is because 5,000 is received by a business unit, so cash is the first aspect, and another one is Shyam, you can say. Means two aspects रहेंगे, आप कैसे भी serial wise इसको write कर सकते हो. So first one is Shyam, क्योंकि Shyam एक lump sum amount business को pay कर रहा है, so major aspect is Shyam. अनदर वन इज़ कैश. ठीक है, कैश बिजनेस में आ रही है. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पिक बोथ द एस्पेक्ट्स. नाउ वी हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड पर्सनल अकाउंट ऑन दीज एस्पेक्ट्स. क्लियर? सो फर्स्ट Shyam is there. Shyam is a person, so this is included in personal account. So according to personal account rule, what is the rule? Debit the receiver and credit the giver. मीन्स जो भी रिसीव कर रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो दे रहा है गिवर है उसको क्रेडिट करेंगे. बिकॉज Shyam इज़ द गिवर. Shyam 5,000 रुपीज़ बिजनेस को दे रहा है. टू पार्टीज आर देयर, वन इज़ बिजनेस एंड अदर वन इज़ Shyam. Shyam इज़ द गिवर बिकॉज ही इज़ गिविंग 5,000 रुपीज़ टू बिजनेस. Business is the receiver, but business is receiving that amount in cash form only. Clear? So two main aspects are there, Shyam and cash. Shyam is a person, so we have to include it into personal account. According to the personal accounts rule, debit the receiver and credit the giver. So because Shyam is the giver, we have to write down it in credit side. Next main aspect is cash. Cash क्योंकि business में आ रही है, so cash is included in real account. Real account से related है cash. So according to the rule of real account, debit what comes in, credit what goes out. Because cash is in comes in form, cash आ रही है, so we have to debit cash in the books of transaction, in the books of accounts. क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है, कैश रियल अकाउंट है. रियल अकाउंट का रूल क्या है कि हमने उन सारी चीज़ों को, उन सारी प्रॉपर्टीज़ को इंक्लूडिंग कैश जो बिज़नेस में आ रही है उसे डेबिट करना है. अब कैश क्योंकि आ रही है इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे. सो योर जर्नल एंट्री इज़ कैश अकाउंट डेबिट टू Shyam. कैश को डेबिट करोगे और Shyam को पर्सन है, गिवर है, इसलिए उसे क्रेडिट कर देंगे. देखो जर्नल एंट्री के लिए थोड़ा सा रूल बता दूं मैं. दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री. फर्स्ट वन इज़ डेट ऑफ द ट्रांजेक्शन. सपोज 21st May is there, so you have to write down in this form. Next particular column is there. In particular column you have to write down the transaction in brief. Means two aspects you have to write down in debit or credit form. So cash is in debit form, so you have to write down cash. In abbreviated form we have to write down A/C, account कैश अकाउंट डेबिट. डेबिट आपको लेज़र फोलियो की लाइन के जस्ट साथ ही राइट करना है. क्लियर? एट द एंड ऑफ दिस कॉलम मीन्स पर्टिकुलर के लास्ट में, कॉलम के लास्ट में यहाँ पे आपने डेबिट शो करना है. एंड द ट्रांजेक्शन, द एस्पेक्ट विच इज़ रिटन इन क्रेडिट फॉर्म, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर. मीन्स यू हैव टू लीव सम स्पेस. ठीक है, आप पर्टिकुलर का जहाँ से आपने डेबिट के लिए राइट किया वो आपका लाइन के बिल्कुल साथ होगा. आप थोड़ा सा स्पेस दोगे यहाँ क्रेडिट के लिए, ये आपके क्रेडिट के ट्रांजैक्शन को डिफ्रेंशिएट करेगा, मींस अलग करेगा उस डेबिट के ट्रांजैक्शन से. और आपको राइट करना है इसके साथ टू मस्ट है. क्रेडिट के लिए हम क्रेडिट एंट्री को आइडेंटिफाई करने के लिए हम 2 राइट करते हैं. बिकॉज दिस इज़ अ पर्सन, सो देर इज़ नो नीड टू राइट डाउन AC और यू कैन से अकाउंट. अकाउंट पर्सनस के साथ नहीं लिखते. ठीक है, और जो एंट्री क्रेडिट होती है उसके सामने हम क्रेडिट भी नहीं लिखते क्योंकि हमने वहाँ 2 लगा दिया, वो 2 ही आइडेंटिफाई करेगा कि वो क्रेडिट है. क्लियर? सो डेट यू हैव टू राइट डाउन, देन यू हैव टू राइट डाउन पर्टिकुलर्स. आफ्टर राइटिंग पर्टिकुलर यू हैव टू राइट डाउन इन ब्रीफ दैट पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन मीन्स ₹5,000 रिसीव्ड फ्रॉम Shyam. इन ब्रैकेट फॉर्म दिस इज़ कॉल्ड नरेशन. ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होता है कि आपने ये एंट्री जो है क्यों की है, क्योंकि हमें 5,000 Shyam से रिसीव हो रहे थे. तो ये ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है आपके ट्रांजेक्शन का. यू हैव टू राइट डाउन इन दिस फॉर्म. देन यू हैव टू ड्रॉ 1 लाइन रिगार्डिंग टू द कंप्लीशन ऑफ द ट्रांजेक्शन. ठीक है. नेक्स्ट कॉलम इज LF. LF मीन्स बिकॉज यू आर मेंटेनिंग जर्नल,
So you have to write down here the page number of लेज़र बुक ऑन विच यू हैव टू राइट डाउन दीज टू एस्पेक्ट्स. आप ये दोनों एस्पेक्ट्स, ये दोनों एंट्रीज जहाँ पे भी जिस पेज नंबर पर भी लेज़र में राइट करोगे उस पेज नंबर को आपको यहाँ राइट करना है. नेक्स्ट 2 columns आर देयर, one for debit and another one for credit, because we are adopting double entry system. So the total of debit is always equal to the total of credit. दोनों एस्पेक्ट्स के टोटल, दोनों साइड्स के टोटल हमेशा सेम होते हैं डबल एंट्री में. सो द सेम अमाउंट इज़ हेयर. कैश जो है वो 5000 की आ रही है और श्याम भी 5000 ही दे रहा है. सो इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन, ईच एंड एवरी साइड यू हैव टू राइट डाउन द अमाउंट and you have to use commas. Clear? So this is a particular journal entry. So to do this you have to learn the rules and regulations of personal, real and nominal account. Clear? Let's consider one more example. Suppose another one is purchase of furniture with rupees 10,000 cash. आप बिज़नेस ने फर्नीचर परचेज़ किया है, ठीक है, और फर्नीचर बिज़नेस जो है वो फर्नीचर का नहीं है. सपोज़ करो क्लोथ्स का बिज़नेस कर रहे हैं हम, और हमने कस्टमर को कंफर्ट जोन में रखने के लिए, उनके बैठने के लिए फ़र्नीचर जो है वो सेटअप किया है, एक काउंटर बनवाया है और उनके बैठने के लिए फ़र्नीचर के रिगार्डिंग सोफ़ा सेट और चेयर्स सेटअप किए हैं, परचेज़ किया है. सो परचेज ऑफ फर्नीचर विद रुपीज़ 10,000 कैश. सो फर्स्टली वी हैव टू find out 2 main aspects of this transaction. One is furniture, another one is cash. क्योंकि फर्नीचर परचेज़ किया है तो फर्नीचर बिजनेस में आएगा और कैश से पेमेंट हो रही है तो कैश बिजनेस से जाएगी. क्लियर? सो 2 main aspects are there. First one is furniture, another one is cash. So furniture, now you have to differentiate it according to the types of account. So furniture is a type of real account, क्योंकि रियल अकाउंट में हम सारी एसेट्स लेते हैं. सो फर्नीचर इज़ अ टाइप ऑफ एसेट, सो यू हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट्स रूल ऑन फर्नीचर. इन द सेम फॉर्म कैश इज़ ऑल्सो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एसेट, अ करंट एसेट. सो दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन रियल अकाउंट. सो यू हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट्स रूल ऑन कैश ऑल्सो. दोनों पे रियल अकाउंट के रूल अप्लाई होंगे. क्लियर? सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल यू हैव टू डेबिट, मीन्स डेबिट व्हाट कम्स इन. जो भी चीज़ आ रही है यू हैव टू डेबिट. फर्नीचर आ रहा है देन यू हैव टू डेबिट. सो क्रेडिट, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट. जो भी चीज़ जा रही है उसको आप क्रेडिट करोगे. सो कैश इज़ इन गोज़ आउट फॉर्म, सो यू हैव टू क्रेडिट इट. तो आपके ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मीन्स फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट. लेट्स कंसिडर वन मोर एग्जाम्पल, दैट इज़ वेजेस ऑफ रुपीज़ 1000 पेड. सो वेजेस, because no word is there, no cash word is there, no party's name is there to whom we have paid wages. So जैसे हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में इसको काफ़ी डिटेल में किया था. so we have to assume that type of transaction as a cash transaction. If no cash word is there, no party's name is there, then you have to consider that type of transaction as a cash transaction. So according to this we have to find out 2 aspects. 2 main aspects are wages and cash. ठीक है, wages पे किए हमने और कैश जा रही है. सो ये दोनों ही मेन एस्पेक्ट्स रहेंगे. सो wages, you can say wages are included in nominal because this is a type of expense and all expenses you have to write down in nominal account. So this is a type of nominal account, means this item is related with the nominal account. And cash is a type of property asset and you have to include all types of assets in real account. So you have to consider it as a real account. So you have to apply real accounts rule on cash. So according to nominal accounts rule we have to debit all types of expenses and losses. अब wages क्योंकि expense है, so you have to write down in debit side. क्योंकि नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्या है, सारे एक्सपेंसेस सारे लॉसेस को आपने डेबिट करना है, सारी इनकम सारे गेन को आपने क्रेडिट करना है. क्योंकि ये एक्सपेंस है तो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? डेबिट. एंड नेक्स्ट वन इज़ कैश. यू हैव टू अप्लाई रियल अकाउंट्स रूल ऑन कैश. सो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ रियल अकाउंट, डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट. जो भी चीज़ आ रही है बिजनेस में वो डेबिट हो जाएगी, जो जा रही है वो क्रेडिट हो जाएगी. बिकॉज वी आर पेइंग कैश एज अ वेजेस, वी आर पेइंग एज अ बिजनेस. आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे कि बिजनेस
कैश में वेजेस को पे कर रहा है. सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मीन्स एक्सपेंस एंड कैश इज़ इन गोज़ आउट फॉर्म. बिजनेस से कैश जा रही है. सो अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल वी हैव टू क्रेडिट कैश. सो आपके ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? वेजेस, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपेंस. सो अकॉर्डिंग टू द नॉमिनल रूल वी हैव टू डेबिट इट. एंड कैश अकॉर्डिंग टू द रियल अकाउंट रूल डेबिट वर्ड कम्स इन एंड क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट. तो ये जा रही है, सो यू हैव टू क्रेडिट कैश. वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश. दिस इज द journal entry of this particular transaction. Okay, now come to the next approach, that is modern approach. Under modern approach you can say we can divide it into 5 different categories: capital, liabilities, expenses, assets and revenues, or you can say incomes. सो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको क्लियर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो. C फॉर कैपिटल, L फॉर लाइबिलिटी, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट्स एंड R फॉर रेवेन्यू और इनकम्स. क्लियर? सो वन बाय वन वी हैव टू डिस्कस इट. कैपिटल मीन्स द अमाउंट which are invested by the owners of the business, or you can say partners of the business. So you have to include accounts of proprietors, partners. ठीक है, ड्राइंग्स आ जाएंगी इसमें, आपकी कैपिटल आ जाएगी. सो यू हैव टू इंक्लूड कैपिटल अकाउंट एज वेल एज ड्राइंग अकाउंट. नेक्स्ट वन इज लाइबिलिटीज अकाउंट. सो लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर यू कैन से द अकाउंट्स ऑफ लेंडर्स, जिससे आपने उधार लिया है. ठीक है. क्रेडिटर्स फॉर गुड्स, जिनको आपने रॉ मटेरियल वगैरह उधार लिया है, या बैंक से अगर आपने लोन लिया है. ठीक है. आउटस्टैंडिंग टाइप ऑफ एक्सपेंसेस हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो गए हैं लेकिन आपने पे नहीं किए, वो भी लाइबिलिटीज़ में आएंगे. सो यू हैव टू इंक्लूड लेंडर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एज अ liability of the business. Next one is expenses. All types of expenses regarding a particular business are included in this head. ठीक है. ये expenses और losses कौन कौन से हो सकते हैं? Like purchase is a type of expense, कुछ भी आप खरीदते हो. Wages, salaries is a type of expense. Depreciation is also a type of expense or loss. डिस्काउंट दिया है आपने कस्टमर को, कुछ सेल की है, उसको डिस्काउंट दिया है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ, you can say, expense. Rent paid is also a type of expense. So all types of expenses are included in this head, and you have to apply the particular rule according to the modern approach. Next one is assets. Assets, you can say, the properties, means those accounts which relate to the economic resources. ठीक है. बिजनेस के जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सारे एसेट्स में आ जाएंगे, लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट. Okay, so bank, cash, patent, goodwill, furniture, all properties, चाहे वो टेंजिबल हैं चाहे इंटेंजिबल हैं, इंक्लूडिंग बैंक एंड डेटर्स. ठीक है. इस पे वो एक्सक्लूडिंग वाला रूल अप्लाई नहीं होगा जो ट्रेडिशनल अप्रोच में था. सो यू हैव टू इंक्लूड ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ अ बिजनेस, ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स ऑफ अ बिजनेस. नेक्स्ट वन यू कैन से रेवेन्यू टाइप ऑफ हेड. रेवेन्यू, और यू कैन से इनकम. So income or gains you have to include in this head, like sale is a type of income, discount received is also a type of income, interest received, commission received, bad debts recovered. So all the you can say incomes you have to consider here. Okay. So what are the rules regarding these types of separate heads? So we can learn regarding this capital, liabilities and revenue or income, you can say, all are having credit balance. ठीक है. इन तीनों के क्रेडिट बैलेंस होते हैं. कैसे क्रेडिट बैलेंस होते हैं? जिन स्टूडेंट्स ने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर कर लिया उनको क्लियर हो जाएगा, बिकॉज वहाँ हमने एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट किया था. अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट फॉर्मेट you have to maintain two sides. One is left hand side and another one is right hand side. Left hand side represent all types of liabilities and capitals of a business, and right hand side represent all types of properties of a business. So liabilities and capital means left hand side you have to consider as a credit side,
and right hand side means all types of assets और and properties having debit balances, और उसको हम debit side बोलते हैं. Clear? Now so you have to apply that balance sheet rules and regulation, balance sheet format according to the type of account, like on capital, on all types of liabilities, on all types of incomes or revenues. You have to apply one rule that debit the decrease and credit the increase. Debit the decrease एंड क्रेडिट द इंक्रीज. क्लियर? आपको इन तीनों पे क्या रूल अप्लाई करना है. अगर इन ये तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ जो है वो बढ़ती है, सपोज आपने बिजनेस में और ज़्यादा कैपिटल लगा दी है, ठीक है, आपने 2 लाख पहले से लगाए हुए थे, 1 लाख यू हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस एज एन एडिशनल कैपिटल, तो आपकी कैपिटल इंक्रीज हो गई, देन यू हैव टू क्रेडिट दैट अमाउंट इन कैपिटल अकाउंट. क्लियर? इन द सेम फॉर्म आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, आपके सप्लायर से आपने गुड्स परचेज़ की थी 20,000 की, आपने उनसे और क्रेडिट पे 10,000 की परचेज़ की कर ली, तो अब आपके वो जो क्रेडिटर्स हैं 20,000 की बजाय 30,000 के हो गए, इंक्रीज़ हो गए. सो यू हैव टू राइट डाउन इन क्रेडिट साइड. अगर आपने उनको कुछ पेमेंट कर दी है, देन दिस पेमेंट डिक्रीज द अमाउंट ऑफ creditors, so you have to record it in debit side. Means अगर ये बढ़ते हैं then you have to write down in credit side, अगर ये कम होते हैं then you have to record in debit side. Clear? In the same form expenses and assets both are having debit balances. Means कि आप expenses को और assets को debit side पे write करते हो. So if expenses are increased then you have to write down in debit side. If expenses are decreased then you have to write down in credit side. In the same form if assets are increased, पहले से फर्नीचर पड़ा हुआ है आपके पास 30,000 का, 10,000 का फर्नीचर और परचेज कर लिया. क्लियर? अब आपका 40,000 का फर्नीचर हो गया, सो 10,000 से आपका फर्नीचर इंक्रीज हो गया, सो यू हैव टू राइट डाउन इन डेबिट साइड ऑफ फर्नीचर अकाउंट. आप फर्नीचर को डेबिट साइड पे राइट करोगे, सो इट विल शो द इंक्रीज इन योर फर्नीचर. इन द सेम फॉर्म अगर आपने फर्नीचर का कुछ पोर्शन सेल कर दिया है देन यू हैव टू रिकॉर्ड इट इनटू क्रेडिट साइड. सेम आर एप्लीकेबल ऑन एक्सपेंसेस. क्लियर? So yes,